Okay. So, पिछले क्लास में we talked about the Bohr's atomic model. We calculated Bohr's radius, energy, ये सब. We also calculated the velocity as well as the time period. ठीक है. Now today, let's talk about hydrogen atom. ठीक है. So hydrogen atom has got one electron. Fine. This electron absorbs energy. This electron will absorb energy and will jump into a higher orbit. Fine. Now, this electron is now excited. Now the electron is in excited state. Initially it was in its stationary state. Now it is in its excited state. Now when it goes back from its excited state, it emits radiation and falls into lower orbits. These radiations are in the form of electromagnetic radiations. These radiations form the spectra. This radiation form a spectra, a spectrum. This spectra is known as the hydrogen spectra. So how does it look? Let's say this is the nucleus. Okay. Now this is one shell. This is another shell. This is another shell. This is another shell. Okay. Like this, we have got several cells. Okay. Now, now the electron was initially here. It jumps. Okay. It can jump to any of them. It can jump into this one. It can jump into this one. This one. This one. किसी में भी jump कर सकता है. Now, when it is returning, it can return to the first orbit like this. It does not matter where it has jumped. If it returns to the first orbit, uh, if it returns to the first orbit, then this will give us the Lyman series. If it falls on the second orbit like this, this will give us the Balmer series. Okay. If it falls on the third orbit like this, as you can see, all the arrows are towards the inner orbit, because when the electron is moving towards the inner orbit, it will release some energy which is in the form of an electromagnetic radiation, and we see the spectrum. So after the Balmer, we can see the Paschen series. If it falls on the, so 1, 2, 3, 4. If it falls on this one like this, let's say there are other orbits. Fine. So this is the bracket series. If it falls on the, this is alignment is n equals 1, 2, 3, 4, 5. If it falls on the fifth, okay, like this, then it will be the fund series. And lastly, if it falls on the last, let's say if I draw it like this, this will be the Humphrey series. यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं. No, sir.
first shell is basically K, then L, then M, N, O, P, like this. Okay, this is not very important. Okay, so after that, so what is the maximum number of lines produced when electron jumps from nth level to ground level? What is the ground level in this case for hydrogen? N equals to 1 is the ground level. Fine. So what is the maximum number of lines produced when electron jumps from nth level to the ground level is given by n multiplied by n minus 1 by 2. Okay. So when it is jumping from 2 to 1, n will be 2 and hence number of lines will be 2. If you calculate 2 multiplied by 1 by 2. If it jumps from 3 to 1, what is the number of lines? It will be n will be 3. The number of lines will be 3. How? Let's say this is equals to n equals to 1, this is n equals to 2, this is n equals to 3. Fine. So from this here, the electron can travel in two ways. It can either travel, first it travels from 3 to 2 and then it travels from 2 to 1, or it can travel directly from 3 to 1. For each of these three, the value of n1 and n2 in the Rydberg's equation changes, and hence the frequency of each of these waves will be different. Fine. So that is why there are three waves which we get. That's why the value is 3. So the maximum number of lines produced when an electron jumps from nth level to ground level is 3. यहाँ तक किसी को डाउट है? This will be 1. सर एक बार फिर से ये वाला पार्ट समझाइए, समझ नहीं आया। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड लेवल मतलब हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड लेवल इज n इक्वल्स टू 1. तो किसी भी ऑर्बिट से 1 पे आ रहा है तो उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 बाय 2. ठीक है? तो अगर वो 2 से जंप कर रहा है, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे जंप कर रहा है, तो कितने टाइप कितने तरह से जंप कर सकते हैं? एक ही तरीके से जंप कर सकते हैं, जस्ट डायरेक्टली इट इज जंपिंग फ्रॉम 2 टू 1. ठीक है? लेकिन अगर वो 3 से 1 के पास जंप कर रहा है तो वो दो तरीके से आ सकता है. आइदर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 3 से 2 पे आया, फिर 2 से 1 पे आया, ऐसे आ सकता है. तो 3 से 2 पे जब आ रहा है वो थोड़ा एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसमें कुछ रेडिएशन हो रहा है. फिर जब वो 2 से 1 आ रहा है फिर थोड़ा कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसमें कुछ और रेडिएशन आ रहा है. सो दो तरह का रेडिएशन मिल रहा है इसमें. या तो इलेक्ट्रॉन कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम 3 टू 1. ठीक है? एक लाइमन का लाइन बना सकता है ये, डायरेक्टली 3 से 1 पे जंप जंप करके. ठीक है? सो दैट विल गिव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट रेडिएशन. तो तीन तरह का वेव तुमको मिल, तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुमको मिल रहे हैं, राइट? सो देयर विल बी थ्री लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम. यस और नो? यस। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। तो अगर n इक्वल्स टू 5 होगा, 5 से 1 पे जंप कर रहा है, तो कितना होगा इसका नंबर ऑफ लाइंस? 10। 10. तो अगर तुम उसको भी ड्रॉ करना चाहो, so let's say n equals to 5, n equals to 4, n equals to 3, equals to 2, n equals 1. ठीक है? एक स्टेप हो सकता है कि इट्स गोइंग वन आफ्टर अनदर. ठीक है? तो चार वेव यहीं पे मिल गया. और इट कैन गो लाइक दिस, और इट कैन गो like this also it can go. Fine. It can also go directly, or it can go like this also. कितना हुआ?
5। नहीं 5 नहीं, और 5 होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग, रुको रुको रुको। यहाँ पे कितने हैं? देर आर 3 ना, 3 अलग अलग, तुमको देखना है कि कितने तरह का रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडिएशन। फाइन, तो मैं इसमें समझ आ जाएगा तुम लोग को। एक हो सकता है कि इट्स गोइंग वन आफ्टर अनदर। ठीक है, इसमें से तुमको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ठीक है, एक के बाद एक जा रहा है। ऐसा जा सकता है, दिस दिस दिस। तो यहाँ पे तुमको कितना मिल रहा है? एक मिल रहा है, दिस वन। ये दोनों तो तुम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो, ऐसा ना? यस सर। या फिर हम लोग इसको और ऐसे भी ले सकते कि ऐसे जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुमको 2 मिल गया। फाइन, सो देयर आर 2। और क्या हो सकता है? यू कैन हैव दिस, यहाँ पे तुमको एक मिल रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इट कैन गो लाइक दिस, तो यहाँ पे तुमको एक मिल रहा है। इट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, यहाँ पे तुमको एक मिल रहा है। इट कैन गो डायरेक्टली, यहाँ पे तुमको एक मिल रहा है। और कुछ है? नो सर, हो गया। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ रेज दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है, ये नहीं पूछ रहे कि कितने तरह से, तरीके से जा सकते हैं, देर आर मेनी। ठीक है, बहुत सारे होंगे तब तो। फाइन, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कितना लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है। फाइन, इसमें जो लाइन प्रोड्यूस होगा इसमें भी वही लाइन प्रोड्यूस होगा। यस और नो? बिकॉज N2 N1 और N2 का वैल्यू सेम है। सो इन दोनों में नंबर ऑफ, इन दोनों का जो वेव होगा दे विल बी सेम। तो हम लोग को पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो वी विल ट्रीट बोथ ऑफ देम एज वन। ठीक है, एक ही है, दे आर द सेम थिंग। क्लियर है? लेकिन ये और ये अलग है, बिकॉज इन ऊपर वाले का N1 N2 क्या है? 4 और 5। नीचे वाले के लिए 3 और 4 है। ठीक है, तो जब तुम N1 N2 का वैल्यू चेंज कर दोगे तो तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो रिचबर्ग इक्वेशन से। यस और नो? ठीक है, ओके सर। हाँ। सो दिस विल बी 10। अगर N4 होता है तो एन आंसर हो जाएगा इसका 6। ठीक है, ज्यादातर 5 तक पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता यूजुअली। अब ये हो गया कि द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू ग्राउंड लेवल, दैट इज 1। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड when electron jumps from N2 to N1 लेवल, किसी भी एक ऑर्बिट है N2, उससे किसी भी एक ऑर्बिट N1 पे जंप कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? N2 माइनस N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर हम पूछे 5th ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जाने के लिए कितना नंबर ऑफ लाइंस होगा? कितना लाइंस होगा? सर नीचे क्या लिखे हो? कहाँ? वो इक्वेशन में 2। 6 होगा। 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। फाइन, 5 से 2 में जाएगा तो भी 6 होगा। 3 से 1, 3 से नहीं, 4 से 1 में जाएगा तो भी 6 होगा। 10 से 7, 10 से 6 में जाएगा तब भी 6 ही होगा। ठीक है, जब बीच का गैप सेम हो तो नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड इज आल्सो सेम। ठीक है, लेकिन ये अगर तुमको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला से निकाल लेना, दिक्कत नहीं। हाँ, नाउ व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम N2 to N1,
हम लोग इसका एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी विल बी E2 माइनस E1। E2 को हम लोग लिख सकते हैं H न्यू, E2 माइनस E1 इसको हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H न्यू। वाई? बिकॉज जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? v बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल ई बाय एच, और v हम लोग c लिख सकते हैं v के जगह पे, पहले v लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं c बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल ई बाय एच। इससे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय डेल ई। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। Nice. Next we will derive the Richenberg's equation. ठीक है, derivation of Richenberg's equation. Richenberg's equation क्या है? 1 by nu, or we can say nu naught, or wave number is equals to RH 1 by n1 square minus 1 by n2 square multiplied by z square। इसको निकालना है। ठीक है, डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग को क्या मिला अभी तक? डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये है मेरे पास। ठीक है, नाउ किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है? ई फॉर nth ऑर्बिट क्या था? माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, सॉरी एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड ई जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये था nth ऑर्बिट के लिए। ये सुनो, Yes. तो अगर हम लोग डेली करते हैं, डेली इज बेसिकली व्हाट? E2 माइनस E1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 बाई एच स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो क्या हम लोग का आ जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बिकॉज n1 के आगे प्लस है, माइनस माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, और यहाँ पे माइनस है, सो बेसिकली हम लोग इसको घुमा दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया है? हाँ सर। डेली क्या होता है? डेली इज एच सी बाई लैम्डा। अगर तुम लोग देखे हो अभी, डेली इज एच वी बाई लैम्डा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेली इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो वी कैन पुट दैट फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स दिस। सो इसके बाद हम लोग को बस एच सी को उस तरफ लेके जाना है, गेस। तो अगर हम लोग एच सी को उस तरफ लेके जा रहे हैं तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई सी एच क्यूब 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा? इस जेड स्क्वायर को यहाँ से हटा दो, वी कैन राइट इट ओवर हियर। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली योर रिचबर्ग्स कांस्टेंट। कितना आता है ये? 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स
or we can write 1.1 multiplied by 10 to the power 7 meter inverse. ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं आर एच और रिचबर्ग्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1 बाय लैम्डा, जिसको हम लोग वेव नंबर भी लिख सकते हैं, दैट इज आर एच multiplied by 1 by n1 square minus 1 by n2 square multiplied by z square। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। इसके बाद what are the uses of Richenberg's equation? What are the uses of Richenberg's equation? नंबर 1, हम लोग को क्या क्या पता चलता है? फर्स्ट लाइन of any series is the line of longest wavelength, ठीक है, and it is also the line of least energy। इसके लिए लॉजिक भी सेम है। फर्स्ट लाइन इज बेसिकली क्या, लेट्स से दिस इज n1, फर्स्ट लाइन इज बेसिकली जस्ट उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से आ रहा है, whereas जब वो और ऊपर ऑर्बिट से आएगा तो उसके पास ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो दैट लाइन विल शो मोर एनर्जी। सो फर्स्ट लाइन जो है, जो सबसे छोटा वाला होता है, इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे कम एनर्जी होता है, सबसे कम इसका फ्रीक्वेंसी भी होता है, इस लाइन ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी। Logic is same because lambda is inversely proportional to frequency। ठीक है, what is the first line, what is the wavelength of first line? इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एच 1 बाय n1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय, और लेट्स से n स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर वी कैन राइट इट एज, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? यस सर। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इट विल बिकम डिफिकल्ट अननेसेसरी, इसी को ऐसे ही रहना दो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइन, किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन पूछेगा, यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस वे, बेसिकली इट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, लास्ट लाइन किसी भी सीरीज का निकालने के लिए यू हैव टू अज्यूम दैट n2 इज इंफिनिटी, ठीक है। n1 तो उसी लाइन के लिए, उसी सीरीज के लिए फिक्स होगा, n2 को कंसीडर करना इंफिनिटी। सो व्हाट विल बी द वेव लेंथ और वेव नंबर, we can write it as 1 by lambda infinity equals to RH 1 by n square minus 1 by infinity square z square। 1 by infinity क्या होता है? वन बाय इंफिनिटी क्या होता है? नहीं पता? 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। 1 बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड, infinity, कभी कभी नॉट डिफाइंड बोलते हैं मैथ्स में, कभी कभी इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। दिमाग में मेरा भी नहीं घुसता, लेकिन 1 बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोग को एक चीज सिखाया जाएगा, क्लास 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 तुम लोग का इंटीग्रेशन 11th में कि 12th में? क्या? इंटीग्रेशन 11th में है कि 12th में है 12th। मैथ्स का? सो 12th। लिमिट भी शायद 12th में ही होगा, शायद, हाँ 12th में ही होना चाहिए, या फिर 11th में, मुझे याद नहीं। एक
चैप्टर है लिमिट्स बोल के, ठीक है। तो उसमें हाँ तुमको, सर, 12। हाँ, तो लिमिट्स बोल के एक चैप्टर है, उसमें तुमको आइडिया आएगा कि वाई वन बाई इंफिनिटी इज जीरो, वाई वन बाई जीरो इज इंफिनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसमें से अच्छे से उससे अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को जो चाहिए दैट इज आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज बेसिकली द वेव नंबर फॉर द लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। ऑब्वियसली इसका, इस लाइन का क्या क्या फीचर्स होगा, हाईएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लीस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट, थर्ड, intensity of the spectral lines. Intensity of the spectral lines. It decreases with increased values of n2. It decreases with increased values of n2. मतलब, if you consider Lyman series, the energy difference between 2 to 1 is obviously greater than the energy difference between 3 to 2, is obviously greater than the energy difference between 4 to 3, and so on. This we are comparing the energy, ठीक है। So what will happen, let's say this is E1, this will be, let's say, E2, this will be E3, this will be E4, this will be E5, and so on up to E infinity, which is basically 0. Why E infinity is 0? Because E equals to minus 13.16 z square by n square, ये तो पता है ना फॉर्मूला। तो n अगर infinity होगा तो E भी 0 हो जाएगा। सो E 0, E इज यूजुअली नेगेटिव, है ना। E का वैल्यू तो नेगेटिव में आता है, तो सबसे कम एनर्जी तुम्हारा होगा E1 में, फिर E2, फिर इट इज इंक्रीजिंग एनर्जीज। बट एनर्जी का जो गैप है उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग, कि E2 से E1 के बीच में जो गैप है इट्स मोर देन 3 to 2, इट्स मोर देन 4 to 3, इट्स मोर देन 5 to 4, एंड सो ऑन। समझ में आया ये वाला पार्ट? ये सुनो, किसी भी सीरीज के लिए Yes. यही होता है, लाइक बाल्मर के लिए भी होगा तो 3 to 2 is greater than 4 to 2 is greater than 5 to 2, and so on, the energy differences, ठीक है। ये सबको समझ आ गया? नेक्स्ट we will come into ionization energy and excitation energy. तो हम लोग इंटेंसिटी किसको बोल रहे हैं, अब क्या होता है? Intensity of the light, intensity of the light जो तुम्हारा एनर्जी पे डिपेंड करता है, अच्छा। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच डिपेंड्स ऑन, हाँ सही है, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। सो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन का मतलब क्या है? एक्साइटेशन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को तुम एक्साइट कर रहे हो, ठीक है। एक्साइट कर रहे हो एज इन यू आर रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट, तुम उसको किसी भी ऑर्बिट पे भेज सकते हो, ठीक है। बट
it should be removed from the stationary orbit. ठीक है, तो excitation energy और excitation potential energy हम लोग बोलते हैं इसको, is basically from n1 to n2 where n1 is its stationary orbit. क्या होता है E2 minus E1, ठीक है, और we can write it as En2 minus En1, ठीक है, एक ही बात. What is ionization potential? Ionization potential मतलब तुम एक आयन बना रहे हो. आयन बना रहे हो का मतलब क्या है? You are removing the electron from the atom. एटम से ही निकालना है उसको. So ionization energy क्या होता है? Where N1 is the stationary, from there you are moving it to N2 which is basically at infinity. तो इसका एनर्जी क्या होगा? En2 minus En1, that is minus En1. ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी, इट्स नॉट एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी. ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में कुछ डाउट है? पहले बताओ, एनी डाउट? सर एक्साइटेशन एनर्जी मतलब वो क्या निकला? एक्साइटेशन वो एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है तुमको खाली स्टेशनरी ऑर्बिट से हटाना है इलेक्ट्रॉन को. कहीं पर कहाँ हटा रहे हो, इट्स इमटेरियल, इट्स बेसिकली यू आर रिमूविंग. आयनाइजेशन में? आयनाइजेशन में मतलब है तुम इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल रहे हो. अच्छा. लाइक सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एकदम निकल जा रहा है एटम से, है कि नहीं? उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी. इट्स बेसिकली एनर्जी needed to remove an electron from its ground state to infinity. ठीक है. Now what is excitation potential? Excitation potential is basically excitation energy divided by charge of electron. Similarly, what is ionization potential? Basically ionization energy, IE, divided by charge of, जिसको हम लोग लिख सकते हैं En1 divided by charge of electron. यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव में है. ठीक है, ओके. आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी हो गया. आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ई इक्वल्स टू ई इंफिनिटी माइनस ई जी एस. जी एस मतलब ग्राउंड स्टेट, बस. ठीक है, सो आई ई इक्वल्स ई इंफिनिटी माइनस ई जी एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस 13.16 नहीं 13.6 होता. कहाँ 13.16 लिखा था? 13.6 minus 13.6 z square by n square ev per atom.
तो यहाँ से आ जाएगा 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर ईवी पर एटम। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? नो सर। Okay. If electron is in excited state, suppose करो कोई इलेक्ट्रॉन excited state में है, then energy needed to remove it, energy needed to remove the electron will be E infinity minus E excited। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एनर्जी नीडेड विल बी ई इंफिनिटी माइनस ई एक्साइटेड, जिस एक्साइटेड ऑर्बिट से ऑर्बिट में वो है वहां से उसको इंफिनिटी में भेज, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ बोर। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या क्या है। नंबर वन, सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है इसका, वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस, इट डज नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जितना भी हम लोग देख रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन 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 और वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट विल हैपन if there are many more than one electrons? So there is nothing that Bohr has said about multi-electron species or multi-electron atoms. Okay, all his discussion is regarding hydrogen, lithium plus, beryllium 2 plus. The discussion revolves around these atoms. Okay, only one electron species. So he does not say anything about the multi-electron atoms. Number two, does not explain the fine spectrum of hydrogen. Does not explain the fine spectrum of hydrogen. हाइड्रोजन लाइंस। फाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? अब हम लोग ऑलरेडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इतना कुछ जान लिए, अब फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सी, लेटर ऑन, ठीक है, आफ्टर बोर्स एटॉमिक थ्योरी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, later on it was found that each line of hydrogen spectrum is made of several closely spaced lines. ठीक है, each line of hydrogen spectrum is further made up of several closely spaced lines। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाउ डिड वी नो? पहले क्यों नहीं दिखा था, उसके बाद कैसे ऐसे हम लोग को दिख रहा है कि देयर आर मेनी सेवरल लाइंस? पहले क्यों हम लोग को एक ही लाइन दिख रहा था? सो व्हाट हैपेंड कि देयर वर टू पीपल, जीमन एंड स्टार्क। ठीक है, they did some experiments to show the splitting of spectral lines. So the basically what happens, the spectral line splits into several closely spaced lines। ठीक है, so we can write it like this कि Bohr does not explain, Bohr does not explain splitting of spectral lines into finer lines under magnetic field and electric।
So when we applied magnetic field along these lines, across these lines, तो हमने क्या देखा? These lines are further getting divided into several more lines. This experiment was done by Zeeman. That's why we call it a Zeeman effect. ठीक है? The experiment on electric field was done by Stark. That is why we call it as Stark effect. So there are two effects, Zeeman effect and Stark effect. Zeeman क्या बोला था कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं इस स्पेक्ट्रल लाइन में, तो क्या हो रहा है, ये स्पेक्ट्रल लाइन फिर से टूट के देयर आर सेवरल मोर लाइंस, एक लाइन के अंदर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा लाइंस है, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देने से भी हम लोग सेम चीज देख रहे हैं कि एक लाइन के बीच में बहुत सारे लाइंस, तो जो जितने भी लाइंस हम लोग के पास पहले था, दे आर गेटिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर लाइंस, ठीक है? Each line is made up of several closely spaced lines. This is known as a fine spectrum of hydrogen. ठीक है? Fine spectrum of hydrogen. तो इसको explain नहीं कर पा रहा है बोर. Bohr could not explain this thing. And lastly, it was not in agreement, does not agree with Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. What is Heisenberg's uncertainty principle? We will talk about later on. बेसिकली क्या बोलता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी कि किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, तुम पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम तुम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, देयर विल ऑलवेज बी सम एरर, ठीक है? अब व्हेन वी लुक एट बिग पार्टिकल्स, लाइक तुम एक बॉल फेंक रहे हो या फिर कोई पर्सन इज रनिंग, ठीक है, सपोज कोई दौड़ रहा है या फिर बॉल से कुछ खेल रहे हो या फिर कुछ भी, तो यू विल से दैट वी कैन इजीली से कि ये बॉल हम लोग स्पीड से फेंक रहे हैं, तो इसका मोमेंटम इतना है, इतना दूर जाके आफ्टर 10 सेकेंड्स, लेट्स से आफ्टर 10 सेकेंड्स इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस x, सो वी नो इट्स पोजीशन, और इसका मोमेंटम इतना रहेगा, तो ये हम लोग बता पा रहे हैं, व्हाई? बिकॉज इट्स अ मेजर और इट्स अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है? बट हम लोग जब उसको धीरे धीरे छोटा करने जाते हैं टू द लेवल ऑफ एटम्स और टू द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन, तो ये अनसर्टेनिटी इंक्रीज होता है, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितना अनसर्टेनिटी रहता है। अनसर्टेनिटी मतलब किसी चीज के बारे में नहीं जानना, ठीक है? सो जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा उतना ज्यादा हम लोग डाउट में रहेंगे कि द इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर आल्सो, इट कैन बी हियर आल्सो, वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर द इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है? तो ये जो अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल था जो हाइजेनबर्ग ने दिया था, इट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद बोर। क्यों? क्योंकि बोर बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस इतना है, एक इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से इतना एनर्जी लेके ऐसे घूम रहा है, सो यू कैन इजीली से कि एक इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे इस मोमेंटम से इस पोजीशन पे रहेगा, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग यू कैन नेवर से दैट, इट्स इम्पॉसिबल टू से कि एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन का अगर तुमको पता है कि उसका मोमेंटम क्या है तो तुमको उसका पोजीशन नहीं पता होगा, अगर तुमको उसका पोजीशन पता है तो तुमको उसका मोमेंटम नहीं पता होगा, यू कैन नॉट नो बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, समझे? Yes, sir. सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है? 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 10:50 है अभी, तो 10:50 11:05 तक ले लो, ठीक है? ठीक है, ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट बोर के बारे में हम लोग सब कुछ जान लिए, ठीक है, लिमिटेशंस एंड ऑल। नेक्स्ट वी विल कम टू Sommerfield's extension. Sommerfield is a scientist. Sommerfield's extension of Bohr's model.
सो समरफील्ड ने क्या किया, बेसिकली थोड़ा मॉडिफाई किया बोर के मॉडल को, ठीक है, ताकि उसका लिमिटेशंस जो है रिमूव हो सके. सो व्हाट ही सेड, it was basically, what was the reason for this extension? To explain the fine line spectrum of hydrogen. फाइन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर फाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. सो व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, क्या बोला उसने? पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. पहले हम लोग को बोर ने क्या कहा था कि इट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. फाइन. Summerfield says that its electron revolves around an elliptical orbit with nucleus at one of its foci. तुम लोग को इलिप्स के बारे में कितना आइडिया है? हम कितने फोसाई होते हैं, कितना एक्सिस होता है, आइडिया है? नहीं सर. इलिप्स कुछ ऐसा दिखता है. काम क्यों नहीं कर रहे ठीक से? एक सेकंड. ओके, दिस इज एन इलिप्स. ठीक है. नाउ देयर आर टू एक्सिस ऑफ एन इलिप्स. इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस. ऑन द मेजर एक्सिस देयर आर टू फोसाई, इसको बोलते हैं R1 और P1 P2. ठीक है. ना किसी एक फोसाई में, दीज आर द फोसाई, किसी एक फोसाई में तुम्हारा न्यूक्लियस है. चलो इसमें हम लोग का लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन जो है इट इज रोटेटिंग इन दिस ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर, तो उसका क्या होगा? हर मोमेंट में उसका रेडियस चेंज हो रहा है, यस और नो? और हर मोमेंट में उसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन भी चेंज हो रहा है. यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? दिस इज द एंगल ऑफ रेवोल्यूशन. कहीं यहाँ पे आ जाएंगे, इसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन क्या बन जाएगा? दिस इज द एंगल ऑफ रेवोल्यूशन. सो एंगल ऑफ रेवोल्यूशन इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट. So if it moves in an elliptical orbit, we can write hence both radius and angle of revolution changes. ठीक है. तो रेडियस हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर, वेक्टर अभी तक स्टार्ट हुआ है कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? हो गया सर कल. हो गया. हो गया, कल हुआ. फाइन. कल क्लास था फिजिक्स का? हाँ हाँ, रात. 11:30 में, 11 बजे. मैथ्स का था ना कल? अच्छा, कल नहीं physics- मैथ्स का आज है. अच्छा अच्छा. तो रेडियस वेक्टर, तो इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसका एक डायरेक्शन है. इसका डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होते जा रहा है और इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी हर मोमेंट पे चेंज होते जा रहा है. यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, ठीक है. इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सर न्यूक्लियस. बोलो. सर ऊपर वाला पार्ट ठीक से समझ नहीं आया. कौन सा वाला पार्ट? बोलो. पहला पोस्टुलेट एक बार फिर से बताइए. पहला पोस्टुलेट क्या है? देखो, बोर ने क्या कहा था. बोर सेड दैट इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में घूमता है. ठीक है. हम्म.
न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कल में घूमता है जहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। हम्म। लेकिन वो कुछ उसका कुछ ड्रॉबैक्स था, ठीक है, लिमिटेशंस थे। तो उन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में सर्कल में नहीं घूमता है, वो एक इलिप्स में घूमता है, ठीक है। उस इलिप्स में किसी भी इलिप्स का दो फोकस होता है, ठीक है, F1 F2 या फिर P1 P2 लो। उसमें से किसी एक फोकस में तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है एक इलिप्टिकल फॉर्म में घूमता है। तुम लोग को नहीं पता है कि अर्थ जैसे सन के चारों तरफ एक इलिप्स में हाँ घूमता हाँ है, हाँ। हम्म। ठीक, उसी उसी हिसाब से, ठीक है, वहीं से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इन लोग को। इन लोग को पता कैसे होगा कि इलिप्स में ही घूमता है, किसी और में भी तो घूमे, किसी भी तरह से घूम सकता है, ठीक है। तो वहीं से उन लोग को कॉन्सेप्ट में मिला है इन लोग को कि अर्थ भी घूमता है इन इलिप्टिकल पाथ। मे बी इट कैन बी लाइक टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। अर्थ का भी तो सेम ही फंडा है ना, उसका भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। हम्म। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज सन इज ह्यूज। और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, Gm1m2/r² होता है, उसमें मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन को मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको उसको इक्वेट करने के लिए वो तेजी से घूमता है एंड इट हैज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट आल्सो, तो वो भी तो सर्कल में घूम सकता था, बट इट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलिप्स में घूमता है जहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट एनी ऑफ द फोसाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब जब वो एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस जब एक फोसाई में है, तब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हर पॉइंट में इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, हम्म। कभी डिक्रीज हो रहा है। और हर पॉइंट में अगर उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। जब वो हाँ। बहुत जब अर्थ अर्थ का ही एग्जांपल है, जब अर्थ सन के बहुत पास से गुजरता है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि जब जब वो पास से गुजरेगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक से जाता है तो उसका क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो उसके हाँ। लिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए उसको ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा, वेलोसिटी ज्यादा चाहिए। यस और नो? यस। ठीक है, सो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है एंड उसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंज हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो हम लोग नहीं पढ़े थे, एल एम वी क्रॉस, सॉरी, आर क्रॉस, आर क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? नहीं। नहीं, ठीक है, वो होगा तुम लोग का। तो आर क्रॉस एम वी, ये मैं पहले बताया था तुम लोग को एक बार भी। तो हम्म। जब आर डिक्रीज होगा तो एल कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम ट्राइज टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जब आर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। एंड द एंगल आल्सो चेंजेस। यहाँ पे देखो एंगल जितना है, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। ऐसा नो, यस सर। सो एंगल इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ रेवोल्यूशन। इसको भी हम लोग एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज द एजीमुथल एंगल वेक्टर, एजीमुथल एंगल वेक्टर। बस जान के रखो, इसका कोई क्वेश्चन से लाइक क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, ठीक है। इट्स जस्ट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एजीमुथल एंगल वेक्टर, सो देयर आर टू वेक्टर्स, रेडियस वेक्टर और एजीमुथल एंगल वेक्टर, ठीक है। नाउ ये जो वेलोसिटी है, सपोज करो, सपोज करो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़े हो, पढ़ा है?
इसने शिवम ने किसी भी वेक्टर का अभी जस्ट दो कंपोनेंट होता है, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. हाँ थीटा इज द एंगल. हाँ हाँ नहीं हुआ? हुआ है हुआ है. देन यहाँ पे अगर वेलोसिटी होगा, इसका दो तुम्हारा कंपोनेंट्स होगा, तो वेलोसिटी has got two components. Number one is the radial velocity, जो रेडियस के तरफ है, which is towards the radius, and number two is the angular velocity, which is perpendicular to the radius velocity, perpendicular to radius or radial velocity. So velocity का भी दो component है, ठीक है, radial velocity, angular velocity. अब तुमको radial velocity से क्या मिलेगा? From radial velocity you will get radial momentum, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी से तुमको क्या मिलेगा? एंगुलर मोमेंटम. अभी तुम लोग को सर्कुलर मोशन भी नहीं पता ना, ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी से मिलेगा एंगुलर मोमेंटम. बस सुन लो अभी के लिए. रेडियल वेलोसिटी से मिलता है रेडियल मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी से मिलता है एंगुलर मोमेंटम. नाउ सोमरफील्ड ने क्या कहा? सोमरफील्ड प्रपोज both these momenta must be equal to, must be an integral multiple of, must be an integral multiple of h by 2 pi. इसका मतलब रेडियल मोमेंटम, radial momentum is n r h by 2 pi, ठीक है, and angular momentum is n phi, n theta या फिर n phi लिख सकते हो. लेट्स टेक इट एज n phi h by 2 pi, ठीक है, and n is equals to nr plus n phi, ठीक है, n equals to nr plus n phi. What is n? n is the major axis. एलिप्स का दो एक्सिस होता है, मैं बोला हूँ, ठीक है. सो ऑब्वियसली देयर इज अ मेजर एक्सिस एंड अ माइनर एक्सिस. n इज द मेजर एक्सिस, ठीक है. और माइनर एक्सिस क्या होता है? n by n phi, n by n phi, that is nr plus n phi by n phi. ये कैसे आता है? ये इलिप्स जब पढ़ोगे तुम लोग मैथ्स में, तब तुम लोग को अच्छे से आइडिया आएगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है. बस बेसिकली मैथ्स का ही फॉर्मूला है. दिस इज योर माइनर एक्सिस. सॉरी, n by n phi is your, n by n phi which will give nr plus n phi by n phi, ठीक है. नहीं, this is not a minor axis. nr मेजर एक्सिस क्या है? nr
प्लस एन फाइव इज योर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है, एन फाइव इज योर माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस एन आर प्लस एन फाइव, माइनर एक्सिस एन फाइव, ठीक है। यहाँ तक डाउट है? सर ये NR N5 समझ नहीं आया। कहाँ तक? एन आर, हम लोग एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई याद है? एम वी आर को हम लोग तोड़ रहे हैं, एम वी आर उस मोमेंटम को हम लोग, इट इज वी आर ब्रेकिंग इट डाउन इनटू टू मोमेंटम, रेडियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब समरफील्ड बोला है कि दोनों को हम लोग h बाई टू पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को पहले क्या पता था कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, लेकिन अब पता चल रहा है कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है, बट जो उसका जो कंपोनेंट्स है, जो हम लोग देखे कि किसी भी मोमेंटम को, किसी वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगा तो मोमेंटम भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज बेसिकली मोमेंटम, सॉरी, मोमेंटम इज बेसिकली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास जो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग को दो मोमेंटम मिल रहा है, समरफील्ड क्या बोला है कि बोथ ऑफ दिस मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई। तो रेडियल मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं एन एच बाई टू पाई, जहाँ पे n को हम लोग एन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज दिस n इज फॉर द रेडियल मोमेंटम। समझ में आया? यस। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग एन फाई ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में तो एन आर नहीं होने वाला, एन फाई, एक का, दोनों का मोमेंटम जब अलग है तो दोनों का एन भी अलग होगा, तो एक का एन हम लोग डिनोट कर रहे हैं एन आर से, विच इज फॉर द रेडियल मोमेंटम, एक को डिनोट कर रहे हैं हम लोग विथ एन फाइव, विच इज बेसिकली द एंगुलर मोमेंटम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक डाउट नहीं है? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम दिस वी आर सीइंग वाया एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टफ, कि एन जो होता है, मेजर एक्सिस जो होता है, इट इज एन आर प्लस एन फाइव, और माइनर एक्सिस जो होता है वो एन फाइव होता है। जैसे हम लोग देखे नहीं थे बोर के टाइम में कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, व्हाट इज एन हियर, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट के लिए ये जो मोमेंटम है इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो n आ रहा है, इसको हम लोग ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? अब एलिप्स का तो ऑर्बिट नहीं होता, एलिप्स का एक्सिस होता है, तो एलिप्स का कुछ रेडियस भी नहीं होता उस हिसाब से, तो हम लोग उसका एक्सिस कैसे निकालेंगे? सो द मेजर एक्सिस इज बेसिकली एन आर प्लस एन फाइव, माइनर एक्सिस इज एन फाइव। समझ में आया? यस सर। क्लियर? ओके। क्योंकि हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते समझो अच्छे से, बिकॉज देर इज नो रेडियस इन एन इलिप्स, there is axis in an ellipse, there is no radius, because radius changes in every moment. Okay, क्या n phi कभी जीरो हो सकता है? what will happen if n phi becomes zero? अगर n phi जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मूव करता रहेगा, ये न्यूक्लियस है लेट से, उसका कोई माइनर एक्सिस ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस लीनियर मोशन, यस और नो? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्या n phi जीरो हो सकता है, यही मैं पूछ रहा हूँ। n नहीं। phi, n phi का मतलब क्या है? हम लोग अभी तक इतना तक तो हम लोग डिराइव कर लिए कि n phi होता है माइनर एक्सिस। अगर n phi जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ लाइक दिस, ऐसे मूव करता रहेगा बार बार, क्योंकि उसका खाली मेजर एक्सिस बचा है, माइनर एक्सिस बोल के कुछ है नहीं। तो n phi कैन नेवर बी जीरो। जीरो, ठीक है। सो n phi कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। और अगर n phi इज माइनर एक्सिस, तो हम लोग ये बोल सकते कि n phi इज
ऑलवेज लेस देन n, क्योंकि हम लोग को क्या पता है n इज इक्वल्स टू n5 प्लस nr, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n5 इज ऑलवेज लेस देन n, यस और नो? यस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मेजर माइनर एक्सिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन मेजर एक्सिस। सो इससे हम लोग को पता चला कि देयर आर टू एक्सिस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एनआर हो सकता है जीरो? क्या एनआर हो सकता है? जीरो हो सकता है क्या? हाँ, जीरो हो सकता, एनआर कैन बी जीरो। एनआर जीरो होगा तो क्या होगा? अगर एनआर इज जीरो, क्या होगा? n5 will become n, so the electron will move in a circular orbit, yes or no? अगर दोनों एक्सिस इक्वल हो जाएगा तो इट विल बिकम अ सर्कल। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लाइक nr अगर जीरो होगा तो n5 विल बी इक्वल टू n, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कल। ठीक है, तो नाउ वी विल सी कि हम लोग इस समरफेल्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सर लोग, फिर ये चीज N5 के केस में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि n5 अगर जीरो हो जाएगा, हम लोग को क्या पता है कि माइनर एक्सिस n5 है। हम्म, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ऑर्बिट में घूमेगा कि स्ट्रेट लाइन में घूमेगा? ये ही जीरो हो जा रहा है, माइनर एक्सिस है ही नहीं उसका, उसका खाली मेजर एक्सिस है, तो एक एक्सिस ऐसे घूमेगा स्ट्रेट लाइन में। अच्छा। ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है। नहीं। हाँ, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में घूमेगा तो इट हैज टू पास थ्रू न्यूक्लियस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिकली। ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अगर n1 होता है तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ n5? जीरो तो नहीं हो सकता, ये तो एक हो सकता है। अगर n2 होगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ n5? इट कैन बी आइदर 1 और 2। हम्म, अगर n इक्वल्स टू 3 होगा तो n5 का पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 1 2 3, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दीज आर द सब ऑर्बिट्स। सोमरफील्ड कॉल्ड देम एज सब ऑर्बिट्स। एक ऑर्बिट के बीच में n इक्वल्स टू 1 इज एन ऑर्बिट, ये हम लोग को पता है। इट्स बेसिकली द k शेल और l शेल और n शेल। उसके अंदर we will get several smaller, or we can say that each orbit can be divided into sub orbits। ठीक है, जैसे n equals to 1 के लिए there is only one sub orbit, that is n phi 1, जो कि सर्कुलर होगा। बट n equals to 2 के लिए हम लोग को दो ऑर्बिट मिलेगा, वन विच इज सर्कुलर जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक होगा जो कि इलिप्टिकल होगा, एंड उसका n phi 1 होगा, and it will be smaller, like it will be like this. So this is n phi equals to 1, this is n phi equals to, sorry, this is n phi equals to 2, this is n phi equals to 2, this is n phi equals to 1। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर हम लोग इसके लिए देखेंगे तो there will be three orbits like this। यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो one of them will be like this, one of them will be like this, one of them will be something like this। ठीक है, जितना ज्यादा तुम्हारा, दिस इज n phi 1, तो इसमें सबसे छोटा है माइनर एक्सिस। फिर इसके बाद दिस इज n phi equals to 2, थोड़ा बड़ा है माइनर एक्सिस, एंड दिस इज n phi equals to 3 where minor axis is equal to major axis। ठीक है, यस सर। समझ में आया थोड़ा बहुत?
हाँ हाँ सर। सर। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी सब ऑर्बिट से दूसरे सब ऑर्बिट में शिफ्ट करता है तब वो फाइन लाइन ऑफ एमिशन देता है अकॉर्डिंग टू समरफील्ड। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन shifts in between suborbits, then the finer spectrum then the finer spectrum of emission is achieved. क्लियर है? एक्सप्लेन हो गया? यस सर। ठीक है, so Sommerfeld could explain the finer spectrum of emission, but he could not explain, still he could not explain the multi electron atom spectrum. So एक मल्टी इलेक्ट्रॉन में जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसका स्पेक्ट्रा कैसे होगा एंड क्यों होगा, he could not explain. He could only explain the final spectrum. Why? Because he introduced the concept of suborbits. ठीक है, क्लियर है? यस। टाइम कितना हो रहा है? 44 44 बस समरफील्ड समझाने में आधा घंटा लग गया। नया टॉपिक वी कैन नॉट स्टार्ट, उसके बाद वाला टॉपिक बहुत बड़ा है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर इसका और कितना टॉपिक्स बाकी है, ये क्या करते बहुत बाकी है। हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ बिग वन। ठीक है, अभी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद लेट्स सी अब क्या क्या है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, उसके बाद क्वांटम नंबर्स है, उसके बाद ये क्या है? अभी किससे देख के पढ़ाते हैं, इतना भी नोट्स लिखा है? बुक, दो बुक है, अच्छा। दो तीन बुक है एक्चुअली। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ एक्चुअली एक बुक से नोट्स बनाते हैं और फिर से इसको हम लोग बंद कर देते हैं, फिर अब जरूरत नहीं है फालतू का स्टोरेज का, इसको स्टॉप कर